जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. I am Professor Manat Ali from, of course, Unique Group of Institutions. The topic for today's discussion is, of course, present continuous tense. We have already done present definite tense in detail, as you know that. We have done present indefinite tense, definition, structure, formation, and active and passive voice in the previous lecture. But right today, let's move towards today's topic, that is none other than present continuous tense. Let me tell you first of all the definition of present continuous tense, right? Present continuous tense tells you about an incomplete action in present times. I repeat my definition. Present continuous tense tells you about an incomplete action in present time. यानी कि ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में नामुकम्मल हो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. ठीक है, ऐसा काम जो कि मौजूदा वक्त में इस वक्त जो हो रहा है वो नामुकम्मल हो, इनकम्प्लीट एक्शन हो, उस काम को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस tells you about an incomplete action in present time. मुझे उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही होगी. For example, what are you doing right now? Of course, you are sitting, or you haven't stopped sitting. You are sitting and sitting and sitting. Are you sitting? Are you still sitting? Yes, you are sitting. So this action of yours is incomplete. आपका ये काम अभी नामुकम्मल है, अभी जारी है. You're continuously sitting. Have you stopped sitting? No, you're sitting. So it tells you about an incomplete action in present time. मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ. I'm quoting you my own example. What I am doing right now? I'm standing. Have I stopped standing? No, I'm still standing in front of you. दूसरी बात, और मैं क्या कर रहा हूँ? I am teaching you. What I am doing? I am teaching you. Have I stopped teaching? No, I haven't stopped teaching. I'm talking to you. I'm teaching you, right? इसके अलावा मैं बातें कर रहा हूँ. I'm talking to you. Have you stopped talking? No. So it means present continuous tense आपको मौजूदा वक्त में किसी ऐसे काम के बारे में बताता है जो कि नामुकम्मल काम हो. मैं कहता हूँ कि ओके, हमजा मलिक, you tell me what are you doing right now? Sir, I'm sitting. I'm having a breakfast of mine. So चलें, आप बताएं, आप what is your father doing right now? Sir, he is having a rest. He is taking a rest. He is sleeping, or the things like that. The more questions I could put to you, the same sort of answers I'll be receiving. So my father is doing this, my father is doing this, and the answers like that will be coming. The definition of present continuous tense is that it tells you about an incomplete action in present time. The definition is written on the whiteboard. It tells you about an incomplete action in present time. I'm 100% sure that you have got what I wanted you to get. आपको present continuous tense की समझ आ चुकी हो. Well, let's move towards the formation of present continuous tense. उसी तरह इसको फोकस कीजिएगा जरा, इसकी जो फॉर्मेशन है, ताकि मेरे बच्चों को अच्छे तरीके से फॉर्मेशन की समझ आ सके. उसमें सब्जेक्ट है. We have talked in detail, very detail, what is the subject. उसके बाद फिर is and are जो helping verb जो है, उसके बाद जो main verb की first form आएगी, उसके साथ हम ing का इजाफा करेंगे. We'll add ing to the first form of the verb, and then at the end we'll have object. तो मुझे उम्मीद है कि आपको फॉर्मेशन की भी समझ आ गई होगी. You must take it down on your
copies, registers and whatever you have got to write on. चलें अब चलते हैं towards this translation. अगर हम क्लास 6 की बात करते हैं, 7th की बात करते हैं, 8th की बात करते हैं, 9th की बात करते हैं, क्लास 10th की बात करते हैं, तमाम इवन के जो इससे भी जूनियर क्लासेस हैं, ये लेक्चर उन तमाम क्लासेस को केटर करेगा। तो ये ट्रांसलेशन जो है इट गोज टिल ग्रेजुएशन तक ये ट्रांसलेशन जाती है। क्लास 5 में, क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में, क्लास 9 में ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। द क्वेश्चन occurs in the examination of 5 marks. Translate the following sentences into English. 10th क्लास में जो क्वेश्चन आता है ट्रांसलेट following paragraph into English, वो 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है। इस तरह से ग्रेजुएशन में भी, सेकेंड ईयर में भी आपको पता है कि ये क्वेश्चन आता है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स ट्रांसलेशन। मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ। सबसे पहला जो आपने काम करना है इज टू पुट द सब्जेक्ट फर्स्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन काम कर रहा है? मैं, आई। याद रखिएगा आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम हम लगाते हैं, आई एम। तो आप देखिए इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है? सेंटेंस में वर्ब कौन सी है? आराम कर रहा हूँ, आई एम रेस्टिंग या आई एम टेकिंग अ रेस्ट, वो भी ठीक है। आई एम रेस्टिंग इस वक्त, एट दिस टाइम, आई एम रेस्टिंग एट दिस टाइम। सेकेंड सेंटेंस, बारिश हो रही है। वी हैव ऑलरेडी डन इन डिटेल कि हम इट क्यों लगाते हैं और कब लगाते हैं। When we talk about weather, we start a sentence with it. जब हम मौसम की बात करते हैं तो हम सेंटेंस it से स्टार्ट करते हैं। बारिश हो रही है, we're talking about weather. ज़ालाबारी हो रही है, it is drizzling, we're talking about weather. बर्फबारी हो रही है, it is snowing. कुछ लोग कहते हैं कि snow is falling, that is a wrong sentence grammatically. Snow is falling गलत होता है। It is snowing according to the grammar. Whenever you talk about weather, you start a sentence with introductory subject, that is it. तो बारिश हो रही है, we're talking about weather. It is, it के he, she, it के साथ हम is लगाते हैं। It is, तो क्या हो रही है? बारिश हो रही है। Rain के साथ हम verb की first form लगाएंगे। It is raining, right? You got it? That's very nice. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। What I'm doing? I'm teaching you, right? तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट इनके जिस चीज के बारे में, जिस शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें कौन किसके बारे में बात हो रही है? मैं के बारे में। आई के साथ एम लगाएंगे। क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? टीच। आई एम टीच के साथ आई एन जी लगाएंगे। I am teaching, तो किसे पढ़ा रहा हूँ? ऑब्जेक्ट है। I am teaching you. That's very nice. तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस, ज़ियाउद्दीन सबक याद कर रहा है। ज़ियाउद्दीन सबक याद कर रहा है। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? Who we are talking about? ज़ियाउद्दीन के बारे में। हम सब्जेक्ट लिखेंगे ज़ियाउद्दीन, DIN। क्या कर रहा है? ज़ियाउद्दीन के साथ बेटा क्या लगाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस लगाएंगे। इज क्या कर रहा है? याद कर रहा है। लर्न, याद करना की इंग्लिश होती है, और ING का इजाफा। लर्निंग द लेसन, सबक याद करें। लेसन जो है वो एक सब्जेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सिंपल सेंटेंसेस हैं ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इनकी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो इसकी आपने घर में ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अब बढ़ते हैं हम टुवर्ड्स द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सर इसको ज़रा फोकस कीजिएगा। इसकी जो फॉर्मेशन है उसमें सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के साथ ऑफ कोर्स इज नॉट या एम नॉट। ही शी इट के साथ हम इज नॉट लगाएंगे। आई के साथ हम एम नॉट लगाएंगे। और जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं वी, यू, दे, या जो प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ हम
ऑन नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो हम इज, एम या आर हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। तो आई एम श्योर आपको ये जो इसकी फॉर्मेशन है ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस उनकी समझ आपको आ गई होगी। तो अब इसके कुछ सेंटेंसेस करते हैं ताकि आपको सेंटेंस फॉर्म करने की सलाहियत अच्छे तरीके से आप में डेवलप हो जाए। तो इस सेंटेंस में who we are talking about, of course we are talking about he के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है is not लगाएंगे, he is not। तो वो क्या नहीं कर रहा है, वो झूठे बहाने नहीं बना रहा है। तो बेटा बनाने की इंग्लिश क्या होती है, मेक। he is not make के साथ ing लगा देंगे, he is not making। तो बेटा जो ऑब्जेक्ट है क्या क्या नहीं बना रहा है, lame excuses। शाबाश, that's very nice, ये बड़े अच्छे बच्चे हैं जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस। आप मुझे अपना पता, जरा उर्दू को फोकस कीजिएगा, आप मुझे अपना पता नहीं बता रहे हैं। तो इसमें हम किस शख्स के बारे में बात करें, we're talking about you, ठीक है। you are not, आप क्या नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। तो भाई बताना की इंग्लिश क्या होती है, telling। you are not telling किसे, me, क्या नहीं बता रहे हैं, अपना पता। क्या नहीं बता रहे हैं, अपना पता। तो इसमें your address, ADDRESS address, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है जो क्या का जवाब देता है, your address, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है to whom, मुझे। लेट्स मूव टुवर्ड द सेवेंथ सेंटेंस। लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, इनके कोरोना वायरस से लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं। इट इज वेरी डेंजरस टू वॉक आउट विदाउट एनी पर्पस, बगैर मकसद के आपने बाहर नहीं निकलना, वैसे फीस जमा करवाने के लिए आप आ सकते हैं। लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, तो बेटा किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल। पीपल, तो बेटा ये बताएं कि इज पीपल आर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। ऑफ कोर्स पीपल जो है बेटा एक प्लूरल सब्जेक्ट है। पीपल के साथ हम आर नॉट लगाएंगे या आंट लगाएंगे। एहतियात करना, टेकिंग केयर। पीपल आर नॉट टेकिंग केयर, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या बुरे लड़के बसों पर पत्थर फेंक रहे हैं। तो बेटा ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिंगल इंट्रोगेटिव है, तो हम लगाएंगे आर बैड बॉयज क्या नहीं कर रहे हैं, फेंक नहीं फेंक रहे हैं। थ्रोइंग क्या फेंक रहे हैं, स्टोन्स एट द बसेस। A bad boy is throwing stones at the buses। तो बेटा एक चीज जो कि आपने याद रखनी है, that is to put the sign of interrogation, इंट्रोगेशन साइन आपने ला में पुट करना है। सेकंड लास्ट सेंटेंस हमारा, क्या वो कार तेज चला रहा है, तो हम इस लगाएंगे पहले, इज ही ड्राइविंग द कार। तो बच्चों वो तेज दौड़ा रहा है, तेज की इंग्लिश क्या होती है, फास्टली। फास्टली को वर्ड नहीं होता, इज ही ड्राइविंग द कार फास्ट। याद रखिएगा फास्टली कोई वर्ड होता ही नहीं है, राइट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आगे ये डबल इंटरोगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तुम किस किस्म के ख्वाब देख रहे हो। डबल इंट्रोगेटिव, व्हाट काइंड्स ऑफ ड्रीम्स आर यू वॉचिंग। व्हाट kinds of dreams are you watching। अच्छा बेटा ये कुछ लोग कहते हैं सर इधर हम सी भी तो लगा सकते हैं, तो जरा सुन लीजिए, ये इसको जरा सा फोकस कीजिएगा। इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें सी में
है। तो जो सी है इसका मतलब भी देखना होता है। जब हम कहते हैं, इसे कहते हैं अचानक देखना। क्या मतलब होता है? अचानक देखना। मसलन मैं कहता हूँ मैंने उसे कल सड़क पे देखा था, यानी कि अचानक देखा था। आई सॉ हिम ऑन द रोड यस्टरडे। ठीक है, मैंने एक किताब देखी थी, आई सॉ अ बुक, यानी कि अचानक देखना। आई सॉ अ कार ऑन द रोड, आई सॉ अ बैगर इन द स्ट्रीट। तो सी का मतलब होता है बेटा अचानक देखना। तीनों का मतलब देखना ही होता है। लेट्स लुक। लुक का मतलब होता है कोशिश करके देखना। लुक का क्या मतलब होता है? इनका जानबूझ के देखना, कोशिश करके देखना। लुक एट द बुक, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, कम ऑन बॉयज, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, यानी कि आप जानबूझ के कोशिश करके देख रहे हैं। तो लुक का मतलब होता है कोशिश करके देखना, जानबूझ के देखना। व्हाई यू लुकिंग एट मी? डोंट लुक एट मी। ओके, आगे देखते हैं। वॉच का मतलब होता है, मैं इधर लिख लूं, कोशिश करके देखना, कोशिश करके देखना। और वॉच का मतलब होता है मुसलसल देखना, मुसलसल देखना। वॉच मीन्स टू लुक कंटिन्यूसली। हम कहते हैं कि मैं टीवी देख रहा हूं, यानी कि मैं मुसलसल देख रहा हूं। आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टेलीविजन, राइट? तो जब हम टेलीविजन देख रहे होते हैं तो ज़ाहिर है वी आर वॉचिंग कंटिन्यूसली। मैं ख्वाब देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग ड्रीम्स। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने थोड़ा सा ख्वाब देखा, फिर उठे, फिर थोड़ा खाना खाया, फिर सो गए, फिर ख्वाब देखना शुरू कर दिया, फिर उठे, पानी पिया, फिर नहीं। ड्रीम होता है जब आप मुसलसल देखते हैं। दैट इज़ वाई ड्रीम के साथ हम वॉच लगाते हैं, आई एम वॉचिंग ड्रीम। तो तुम किस किस्म के ख्वाब देख रहे हो? What kinds of dreams are you watching? तो आई एम श्योर आपको आज का जो लेक्चर है that is about present continuous tense आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो कि कल इंशाल्लाह बना के मैं YouTube पे डालूंगा, आपको सेंड भी करूंगा, वो कुछ प्रोनाउंसिएशन के हवाले से कुछ चीज़ें होंगी that I will tell you। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा we'll talk about the active and passive voice of present continuous tense। लेकिन जो कल मैं लेक्चर बनाऊंगा वो आप लोगों की जो थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन है, we'll discuss a little bit about your pronunciation। Thank you very much। अल्लाह हाफ़िज़।